हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने पावन खिंड नाम का मराठी फिल्म देखा थिएटर में एंड लेट मी टेल यू, दिस फिल्म हैज बीन मेड विद अ लॉट ऑफ हार्ट, sweat, blood and tears. And it's a film that's got its heart in its right place, especially when it comes to telling and showcasing a very important battle from our history, from Indian history, from Maratha history, the Battle of Ghodkind Pass, led by the absolutely brave and legendary Baji Prabhu Deshpande and his Sena. And how Baji Prabhu Deshpande and his Sena defended Ghodkind Pass against 10,000 Bijapuri soldiers and fought all these Bijapuri soldiers relentlessly for 18 hours and made the supreme self-sacrifice of their lives while defending this pass. This is the tale of unimaginable valor, absolutely great courage and true bravery. Even fiction can never be written like this, and this is true history that we are talking about. This is real story, real tale that we are talking about, dosto. And in memory of these brave soldiers for their supreme sacrifice, Ghodkind Pass was later renamed as Pavan Khind. This is the engaging story. This is the true life story. This is the inspiring story that has been narrated in this film Pavan Khind. And जो तरीके से दोस्तों नरेट किया उस स्टोरी को, वो नरेशन इतना ब्यूटीफुल है, इतना एंगेजिंग है, मतलब हुक एंड बुक करके रखेगा आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड। दोस्तों, मेरे लिए ना इस फिल्म में 3 इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं। पहला मोमेंट आता है बिफोर इंटरवेल, when Chhatrapati Shivaji Maharaj, played by actor Chinmay Mandlekar, delivers an absolutely inspiring and rousing speech. वो स्पीच जिस तरह से डिलीवर करता है यार चिन्मय मांदलेकर एज छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब बह जाओगे आप, गूज बम्स आ जाएगा आपको यार। वॉच आउट फॉर दैट स्पीच जस्ट बिफोर द इंटरवल, सुपर्ब। एंड द डायलॉग डिलीवरी दैट चिन्मय मांदलेकर डिस्प्लेस इन दैट सीक्वेंस, यार जिया है उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल को यार। क्या परफॉर्मेंस है यार, क्या पर्सनैलिटी है यार। Absolutely amazed with that performance of Chinmay Mandlekar in each and every single scene, especially in this scene that I'm talking about, where he delivers that absolutely goosebumps wala speech of brilliant performance as Chhatrapati Shivaji Maharaj, the brave Chhatrapati Shivaji Maharaj. दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा सीन है वो शिवा वाला सीन है, when Shiva dressed as Chhatrapati Shivaji Maharaj enters the camp of Siddhi Johar, and when his real identity comes to light, comes to the fore, is discovered. वो रियल आइडेंटिटी डिस्कवर होने के बाद आपका दिल दुखेगा यार, बिकॉज यू नो नाउ दिस मैन इज जस्ट अबाउट टू मेक सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ हिज लाइफ फॉर हिज राजे। वो एक लाइन बोलता है तभी शिवा, मेरा आखिरी दाव या समथिंग लाइक दैट। अरे वो जो लाइन बोलता है ना, आपका दिल दुखेगा यार। समथिंग विल स्ट्राइक डीप इनसाइड योर हार्ट एट दैट टाइम यार। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस दिया है, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एक्टर अजिंक्य नानावरे प्लेस शिवा, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय अजिंक्य नानावरे, टेरिफिक। उसके बाद तीसरा है लास्ट का 30 मिनट्स, वेर बाजी प्रभु देशपांडे प्लेड बाय अजय पुरकर, ही डिलीवर्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम। दोस्तों, दंड पटा पकड़ के जो खड़ा रहता है इन फ्रंट ऑफ दोस 10,000 बीजापुरी सोल्जर्स, और उनका जो वॉर क्राई है, वो वॉर क्राई तो यार मतलब इंस्पायर कर देगा आपको। बट एक सीन है जब दंड पट्टा लेके ऐसा अजय पुरकर खड़ा है इन फ्रंट ऑफ दोस बीजापुरी सोल्जर्स एंड एज बाजी प्रभु देशपांडे से छल, अरे यार ताली बजा यार, थिएटर में लोगों ने तालियां बजाया यार, वंडरफुल। और उसके बाद जिस तरह से ही अनलीशेस हिमसेल्फ, the way he unleashes himself on these Bijapuri soldiers and he hacks them, kills them one by one. यार वो जो combat है, terrific to watch, terrific. And it is not because the choreography is brilliant, but it is because the kind of passion that Ajay Purkar has infused into his character. He has just brought out the real soul and essence of Baji Prabhu Deshpande, the legendary Baji Prabhu Deshpande to life. जो जोश के साथ, जो जान के साथ, जो पैशन के साथ, जो इमोशन के साथ वो लड़ता है ना यार, you will just stay glued to your seats in that last 30 minutes. और जो वैलर वो टाइम, वो बैटल में शायद बाजी प्रभु देशपांडे ने दिखाया था, लेजेंडरी वॉरियर, वो सेम अनइमेजिनेबल करेज एंड वैलर आपको अजय पुरकर के कैरेक्टर से देखने का मौका मिलेगा यार। ब्रिलियंट स्टफ दोस्तों। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट मोमेंट्स फॉर मी इन दिस फिल्म,
एंड अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं, एवरीवन स्पेक्टेकुलरली ब्रिलियंट. चिन्मय मांडलेकर terrific as Chhatrapati Shivaji Maharaj. Ajay Purkar, yaar, like I said, he brings the soul, the essence of Baji Prabhu Deshpande to life with this performance. Brilliant to watch. Brilliant stunt also यार. Stunts जो भी किया है उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, बहुत फाइटिंग जो किया है बहुत अच्छा किया है उन्होंने. उसके बाद there is समीर धर्माधिकारी as सिद्धी जौहर. यार, you will take some time warming up to his mannerisms, his character. It is quite difficult to recognize Sameer Dharmadhikari, at first glance. थोड़ा difficult रहेगा. But then once you start recognizing that this is Sameer Dharmadhikari and once you start warming up to his mannerisms, you will start enjoying his act, his villainy, his intimidation. It is fun to watch, no doubt about it. Then there is Ankit Mohan who plays Rayaji. अरे यार, terrific acting again, super performance in the climax. और इनका जो बॉडी है यार, क्या बॉडी बनाया है इन्होंने. एक सीन है मेरे हिसाब से डायरेक्टर लांजरेकर साहब ने, वो एक सीन जिसमें पुशअप्स मार रहा है अंकित मोहन, वो सिर्फ उनका बॉडी दिखाने के लिए डाला होगा यार. टेरिफिक बॉडी यार. इसके अलावा अजिंक्य नानावरे शिवा इज सुपर. अस्ताद काले एज मसूद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यार वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव. इनके अलावा मृणाल कुलकर्णी है, रुचि है, प्राजक्ता माली है. सभी लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है. क्षितिज जोग है. वेरी गुड परफॉर्मेंस. दोस्तों, परफॉर्मेंसेस का एक अलग सा समा बांध देगा ये फिल्म. एंगेजिंग नैरेटिव भी है. बस ड्रॉबैक मुझे सिर्फ दो लगा. एक तो है वीएफएक्स. जो भी वीएफएक्स में देखा बहुत ही ओकेश लगा. और दूसरा स्टंट कोरियोग्राफी जो था ना, स्पेशली इन द अर्लियर पार्ट्स ऑफ द फिल्म, वहां पे स्टंट कोरियोग्राफी मुझे अगेन थोड़ा ओकेश लगा. उतना कुछ डिफरेंट या माइंड ब्लोइंग या आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला फीलिंग नहीं आया. बट देन अगेन आई वुड पुट दिस थिंग्स डाउन टू बजट कंस्ट्रेंट्स. अगर बजट होता, I mean, give Marathi cinema and Marathi filmmakers the budget of say a बाहुबली, तो VFX भी सुपर होगा और उनका स्टंट डिजाइन कोरियोग्राफी भी आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा यार. तो जो बजट में पावन खिंड को बनाया गया, आई थिंक टेरिफिक जॉब. आई एम गोइंग विद 3.5 स्टार्स. एंजॉयड वॉचिंग पावन खिंड. Really inspiring film, a film that each and every single one of us should watch and get inspired and feel proud about. Let me know दोस्तों, अगर आपने पावन खिंड देखा तो आपको ये फिल्म कैसे लगा. Let me know your thoughts, your opinion. चलिए, for the moment, टाटा.